So we will start with the session. जितने लोग हैं, we'll start off with them, and gradually people would be joining in. I think कुछ लोगों को links नहीं मिले हैं because I just got a message from SBT कि उन लोगों को link नहीं मिला आज का. So I've shared with them. उन लोग register करके join करने तक 2-3 मिनट लग जाएगा. But meanwhile we will just start with the ये you कितने लोग हैं? know. How many people are there right now? There are right now 5-6 right now. हम लोग introduction का 10. We have around 10 participants now. So So the we'll. thing is, it'll be nice अगर आप अपना, क्योंकि ये इंटरैक्टिव वर्कशॉप होने वाली है, मतलब अगर हम राइटर्स वर्कशॉप की बात करें तो एक दिन या एक घंटे में तो राइटिंग नहीं सिखाई जा सकती है. तो ये सिर्फ एक ओपनिंग वर्कशॉप, इट्स नॉट अ राइटर्स वर्कशॉप, बट एक आइडिया दे रहे हैं कि कैसे यंग राइटर्स, और राइटर्स तब सब तरह के होते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ कहानी लिखना हो या कुछ, बट अभी हम उसके बारे में भी इन डिटेल बात करेंगे. तो राइटर्स तो बहुत तरह के होते हैं. तो कैसे बच्चों को राइटिंग में डालें. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद भी एक टीचर हूँ, मैं ऑथर भी हूँ. तो बहुत जरूरी है कि हमको बच्चों को आदत डालनी है राइटिंग की. लॉट ऑफ चिल्ड्रन डोंट वांट टू राइट आल्सो दीज डेज. लॉट ऑफ चिल्ड्रन वांट टू जस्ट टाइप ऑन द कंप्यूटर. नाउ द सैड पार्ट अबाउट टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर इज कि वहां पे वो अपने आप वो करेक्शंस होते रहते हैं, तो वो कभी कुछ सीख ही नहीं पाते लिखने का तरीका. मगर जब एग्जाम्स की बारी होती है, या अगर आपको एक आगे चल के प्रपोजल लिखना है या कुछ, जो कि ये सिलेबस में है इनके ग्रेड 11 के, मैं कल ही किसी को करा रही थी, तो हमें आएगा ही नहीं, क्योंकि जब हम रियल लाइफ में जाएंगे तब तो हमें खुद ही लिखना होगा अपने आइडियाज से. तो मैं इसको बहुत रिस्ट्रिक्टिव वर्कशॉप नहीं करना चाहती कि हम इसी प्रकार, बट यस, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन विल बी अ वेरी बिग पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप. ऑल्सो दिस इज मोर लाइक ओपनिंग द माइंड टू writing. That's all what we are trying to do here. Again, we are going to use katha stories because they are very beautiful and wonderful. तो वो, और उसमें भी मैं आप चाहूंगी कि आप लोग कंट्रीब्यूट करिएगा. Any questions so far, please ask, because I haven't started yet. Like, rather, Anamika has not even given an introduction and I just. But you've covered it up in which way, so it's fine. तो अगर कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज पूछेगा. इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरैक्टिव फन वर्कशॉप, क्योंकि इफ आई वी कैन क्रिएट फन ऑनलाइन हियर, मे बी later you can create the same fun and magic in the classroom. That is the whole idea of this workshop. कुछ क्वेश्चंस हैं. विजय लक्ष्मी मैम, भूपिंदर सर, वुड यू लाइक? तनु मैम. Yeah, ma'am, this is very important and a pain area in a way that how we can just motivate the student to write creatively and creative writing or anything, how the child thinks independently and write over there. Because most of the kids, whenever they are supposed to write anything, what they do that they Google, get it, and then paste it. So that way, how we can motivate them in such a manner that yes, they start thinking originally. This is my creation. So that type of I'm looking of, because I'm also into training of teachers. So I want to get the ideas in that manner so that I can pass it on to my teachers and they can further take it to the students. Where are you joining from, sir? I'm from Bharti Airtel Foundation, ma'am. Okay, perfect. Thank you, sir. Thank you. So that is exactly the topic today. ये हमारा लास्ट, जो हमारा लास्ट, सो आई विल बी टॉकिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी. यहाँ इंग्लिश वाले काफी लोग हैं क्या? Are there very many people, or should we just restrict ourselves to Hindi? Mix, I think I think bilingual. mix bilingual is always better. Yeah. No Right. issue. Yeah. So rather we are doing translations, we are not keeping it bilingual. So in that, we are not mixing the language. Okay. So that's a very important part, actually, that we should not be mixing language, because then it's a, you are just making it. So this is the last week, Celebrate the Joy. I think today is the last day where we are doing Joy of Reading. It started on April 2 until date.
Anamika would talk about the channels. Yeah. Thank you. So, yeah, hello everyone. Good afternoon and a hearty welcome to this wonderful session. Before we start our workshop, मैं पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि we have हमारा स्टोरी हेल्पलाइन हमारे चैनल्स हैं। तो हमारे कथा के व्हाट्सएप चैनल में जुड़ने के लिए आप जो हैं ये जो ग्रीन वाला स्कैन बटन है उसको आप स्कैन कर सकते हैं। क्यूआर कोड जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। यदि आप पेरेंट्स हैं एंड आप बच्चों में लव ऑफ रीडिंग इनकलकेट करना चाहते हैं तो आप ब्लू वाला जो सेकंड वाला आपको क्यूआर कोड दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर उस पे आप यू कैन जस्ट स्कैन दैट। एंड यदि आप लोग टीचर्स हैं और आप लोग यदि ऑलरेडी हमारे हेल्पलाइन ग्रुप में हैं तो फैंटास्टिक, और यदि नहीं है तो ये जो ब्लैक वाला क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप उसको क्लिक कर सकते हैं। बहुत वंडरफुल रिस्पॉन्स आया फॉर द लव ऑफ रीडिंग। फेसबुक में, लिंक्डइन में, इंस्टाग्राम में या हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अलग अलग जगह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। एंड इट इज सो वंडरफुल टू सी कि बच्चे और पेरेंट्स टीचर्स के साथ साथ वो भी इतनी इक्वली एंथुजियास्टिक थे इसमें ज्वाइन करने के लिए। सो वी गॉट ग्रेट फीडबैक, सो दैट्स रियली हमारे स्पिरिट्स को काफी बूस्टिंग मिल रही है कि आप लोगों ने जॉय ऑफ रीडिंग के इस एंटायर मंथ को एंजॉय किया। सो दैट्स फैंटास्टिक। और हमारी जो कूल लाइब्रेरी है, यदि आपको जैसे हमारी कथा की बुक्स जानना चाहते हैं उसके बारे में तो learn.katha.org जो है इसमें ई बुक्स, आपको कोई भी बुक्स डाउनलोड करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, यू वांट टू यूज इट व्हाइल टीचिंग सब्जेक्ट्स आल्सो, आराम से आप पोर्टल पे वो कर सकते हैं। इस पोर्टल को किस तरह यूज किया जा सकता है, कहाँ क्या कहानी है, क्या ढूंढना है, क्या क्या है, या ये एलेक्सा की कहानियां चाहिए तो कैसे चाहिए, ऑडियो कहानी चाहिए या वीडियो कहानी चाहिए या पीडीएफ चाहिए, यदि आपको वो सब पता नहीं है तो हर फ्राइडे 12:30 to 1:30 इस पोर्टल को किस तरह यूज किया जाए एक सेशन होता है। अगेन दैट्स एट प्रेजेंट कंप्लीटली फ्री है टीचर्स के लिए। सो आप लोग फैसिलिटेटर्स, पेरेंट्स जो भी चाहें learn.katha.org पोर्टल की ट्रेनिंग के लिए आप 12:30 to 1:30 फ्राइडे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आपको कुछ क्वेरी है, कब क्या प्रोग्राम होता है आपको पता नहीं है एंड यू वांट टू नो सम डिटेल्स अबाउट अस, तो आप हमें ईमेल भेजिएगा learn@katha.org पे आप लिख सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं। और यदि आपको फिजिकल हार्ड कॉपी बुक्स की चाहिए, क्या क्या बुक्स अवेलेबल हैं जानने के लिए, कौन सी बुक्स ऑर्डर करना है जानने के लिए, books.katha.org प्लेटफॉर्म पर आप जा सकते हैं। सो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट हाउ यू कैन एंगेज विद कथा। एंड कमिंग टू राइटिंग वर्कशॉप, वैसे तो सोनिया मैम ने इंट्रोडक्शन दे दिया है, बट आई जस्ट वांट टू गिव माय पर्सनल एग्जांपल। मेरे बच्चे जब दोनों छोटे थे एंड आई रिमेम्बर कर्सिव राइटिंग कंपलसरी होता था, हॉलीडेज में जब होमवर्क होता था कर्सिव राइटिंग होता था। मेरी बेटी मतलब उसको आराम से 10 पेजेस लिखती रहेगी, लिखती रहेगी, लिखती रहेगी, लिखती रहेगी, नेवर एंडिंग, मतलब आराम से बहुत खुशी खुशी लिख देती थी। एंड आज शी इज वर्किंग एज अ कंटेंट राइटर। मुझे पता ही नहीं था कि उसको मतलब राइटिंग में इतना इंटरेस्ट है कि वो कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट या कंटेंट राइटिंग में जाएगी। और मेरे बेटे को 2 वर्ड्स लिखाने के लिए मतलब वो मुझे आसमान के सारे चांद सितारे याद दिला देता था। इतना तंग करता था, इतना तंग करता था, लिखना उसके बस की बात नहीं होती थी। बट टुडे ही इज परस्यूइंग हिज पीएचडी इन फिजिक्स और उसको मैंडेटरी रिसर्च में इतना इतना लिखना पड़ता है एंड इट्स लाइक मैंडेटरी। तो हमें पसंद हो ना पसंद हो, राइटिंग इज अ पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन, एंड अपने आप को कम्युनिकेट करने के लिए हर बार बोल के कम्युनिकेट नहीं कर सकते। देयर आर मेनी टाइम्स कि हम लोग लिख के ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं। इनफैक्ट हमारे बचपन में पनिशमेंट मिलता था तो भी राइटिंग का पनिशमेंट मिलता था कि लिखो, ये 10 बार लिखो, यदि होमवर्क नहीं किया तो 10 टाइम्स यू राइट दिस, या कुछ होमवर्क नहीं किया तो 10 बार लिखो, ताकि 10 बार जब लिखते हैं तो वो मेमोराइज हो जाता है और कई साल तक हम भूलते नहीं है। सो राइटिंग के बहुत अलग अलग फायदे हैं। ये नहीं कि आज के सेशन के बाद हम लोग सब राइटर्स बनने वाले हैं, दैट इज नॉट द इंटेंशन ऑफ टुडेज सेशन, कोई लेखक यहाँ बनने नहीं वाले हैं। बट द बेसिक पर्पस, इसकी बेसिक टेक्निक्स जो होंगी वो क्या है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी शुड गेट इनटू राइटिंग, ये डिटेल्स हमें बताएंगी सोनिया दुग्गल। शी हैज कंडक्टेड सेवरल वर्कशॉप्स एंड शी हैज स्टूडेंट्स अक्रॉस द ग्लोब। सो आज सोनिया हमें क्या बताने जा रहे हैं जानने के लिए, आई विल हैंड ओवर द सेशन टू सोनिया। सोनिया, ओवर टू यू मैम। थैंक यू। तो अगर हम बात करें तो पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी क्या होते हैं, राइटिंग क्यों जरूरी है। ये तो बहुत ही जरूरी बात है कि हमारे, और ये बात हमें टीचर्स एज टीचर्स भी समझना पड़ेगा, और हमें आगे बच्चों को तभी समझाएंगे अगर हमें समझ में आए दैट हाउ क्रूशियल इज राइटिंग टू आवर लाइव्स। इट्स अ लाइफ स्किल, and the more it's not I'll give you very real examples for this reason as we go forward. Activities to enhance writing skills in the children, तो मैं आप लोगों को कहूंगी कि आप hands on activities करिएगा आज।
तो जिससे थोड़ा सा मजे वाला. So the idea is to create fun so that the children learn sooner. That's the whole story pedagogy, which Katha anyways follows. Then understanding different kinds of writing. तो एक प्रकार की राइटिंग नहीं होती है, राइटिंग भिन्न भिन्न प्रकार की होती है. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो. सबसे पहले हमारा सेशन होता है स्टोरी टाइम. अनामिका, कैन यू टुडे शो द पीडीएफ इफ यू डोंट माइंड? Is that a Okay. possibility? Yeah, you. Okay. So somebody else can read it, Okay. and if you could just share the. Yeah, just give me a minute, I'll share it. हाँ जी, thank you so much जी. You want me to share the English version? हाँ जी, तो अभी कोई इंग्लिश का है यहाँ पे जो पढ़ना चाहेगा इंग्लिश में? नहीं तो फिर हम ही पढ़ेंगे, और फिर एक हमें वॉलंटियर चाहिए. मगर बिफोर अनामिका मैम दिखा रही हैं आपको, मैं एक छोटी सी चीज दिखाना चाह रही थी कि जब आप ये किताब देखिएगा तो उसमें आपको ये चीजें का ध्यान रखना है. तो मैं ये नेक्स्ट स्लाइड पे जाती हूँ अनामिका. Yeah, जस्ट. हाँ, sure. ओके, सॉरी, आई हैव जस्ट ओपन द बुक. एक मिनट, आई वांट टू शो द स्लाइड जब तक मैम. तो अगर आप देखिएगा, जब व्हेन यू रीड दिस स्टोरी यू लुक एट द विजुअल अपील. So this is very interesting for the children, the visual appeal. Okay, so that is something please keep in mind. हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं. क्या ये कहानी की स्टोरी लैंग्वेज रिलेटेबल थी बच्चों के साथ? ये एक प्रश्न है आप लोगों के लिए. और क्यों रिलेटेबल थी, तो आप नोट्स लिख सकते हैं जिससे हम बाद में एक फ्री फ्लोइंग डिस्कशन हो सके. किस तरह से ये जो कैरेक्टर है इसमें, क्रोकोडाइल जो मेन कैरेक्टर है, उसको कैसे जिंदा अलाइव किया गया है, क्या चीजें यूज की गई जिससे हमें लगा कि ये सही में हमारे सामने हो रहा है और हमें इंटरेस्ट बैठ रहा है. तो ये एक और पॉइंट है. स्टोरी लाइन क्या है इसकी. तो ये सब जो प्रश्न है ये आप लोग प्लीज अपने दिमाग में रखिएगा जब ये आप कहानी सुनेंगे. पहले हम इसको इंग्लिश में सुनाएंगे और उसके बाद हिंदी में. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी. Okay. ओवर टू यू Yeah, अनामिका. Sonia ma'am, Yes. I'll share the screen if you can stop sharing, I'll share the screen. हाँ, आई हैव डन इट. So let me know when my screen is visible. It's visible? हाँ जी. Okay. Just one. The Famous Smile. This story is by Geeta Dharmarajan and the art is by Rasheen Kheriye. Now we move on to the story, The Famous Smile. Agar Magar had the most sparkling set of teeth in the whole jungle. Every day he brushed them carefully with a long, thin neem branch, and then he lay on his muddy, squishy river bank, hoping someone would see his smile and exclaim, "Oh, Agar Magar, what beautiful shining teeth you have!" Every once in a while, Agar Magar would have his head just a wee bit. How the sun shone on his teeth, how they sparkled, how they twinkled, as if someone had stuck millions of big and little stars on them. That day, his teeth shone the brightest, and off he went in search of a friend to whom he could show off his magnificent white teeth. Agar Magar smiled at some fish swimming by. He asked them politely, "Don't my teeth look grand?" But the fish took one look and darted away.
Who wants to be eaten by a huge crocodile with teeth like sharp knives? Agar Magar walked on, shaking his head. Suddenly, he saw some strangely beautiful animals. What lovely stripes they have! Perhaps they would admire his teeth. But the zebras just galloped away as fast as their black and white legs could carry them. Agar Magar walked on sadly. Deep in the forest, Agar Magar met the monkey. Ah, my friends, he called out happily. My brave and wonderful friends, just look at my. And Agar Magar opened his mouth wide, flashing his saw like teeth. But where were the monkeys? Agar Magar peered into the thick leaved branches of the tree. Before you could say Agar Magar, the monkeys had vanished. Silly monkeys, quipped Agar Magar. Deeper into the dark, dense forest he went, and he nearly tripped over Obra Cobra, who was crossing the road. Obra, Obra, my friend, look at my teeth, shouted Agar Magar. Yes, so nice, said Obra, and slithered away as fast as he could. Tigu Tiger was dozing under a shady tree, but she too scampered up the trunk quickly and bared her teeth at Agar Magar. Agar Magar grinned. Nice yellow teeth you have, Tigu. He scoffed and walked away. Agar Magar walked and walked and walked. Soon he came to the end of the forest. He looked down the hill and saw a big town. Then Agar Magar thought of all the wise people who lived in that town, and he smiled his widest, most magnificent smile. Suddenly, flash went a light in Agar Magar's face. Oh, what? He sputtered. Smile, please, said a voice. You have the most beautiful teeth in the whole world. I have been hunting all day for this smile. Oh, said Agar Magar. He was as happy as can be, and he grinned and grinned and grinned. He grinned till his cheeks started hurting. Click, 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 click. Flash, 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 flash. Thank you, said the photographer, beaming happily. Now I have found the best smile for my toothpaste advertisement. Family toothpaste. Me in a toothpaste advertisement? Gasped Agar Magar. He just couldn't believe his ears. Of course, said the photographer. And it's going to be the best advertisement of the year, too. Here's a tube of toothpaste and a medal for you to wear around your gorgeous neck. Thank you, said Agar Magar. It was the biggest, roundest mirror anyone had ever seen. Agar Magar proudly wore it around his neck. Now all he had to do was peer down, and there his teeth shone back at him. In no time, he was the talk of the town. But Agar Magar? The newspapers buzzed with Agar Bagar. Now everyone wanted him in their advertisements, in films, picture books, even on Cartoon Network. But Agar Bagar, well, he is back in his green forest with all his friends, where he is happiest, and he always tells them, see, Agar Magar has the strongest, brightest, whitest teeth in the whole wide world. And his many friends agree with wide, sparkling grins. Surely, you must have seen Agar Magar. He's so popular that all the toothpaste makers want him. And his sparkling, gleaming, beautiful teeth, his famous smile. The famous smile. So this was the story about Agar Magar's The Famous Smile. Thank you. Over to you, Sonia ma'am. मजा आया? Yes, sir. Yes, ma'am. Bipin, Yes. Yeah, I was just so visualizing that where that crocodile is moving correct, and how correct, that photograph is clicking the photograph. right. कोई बोलना चाहेगा कि क्या विजुअल अपील है? हम इसको फिर हिंदी में भी पढ़ेंगे, वो मैं शेयर कर दूंगी अब। तो बट अभी तक का कुछ आपको लग रहा है कि
विजुअल अपील क्या थी इसमें? अगर मैम आप देखें। अगर हाँ मगर जी। अगर द वे मगर visually यस। appeal the things that the picturization, how the text is being put over there as per the scene. Somewhere it is in a curly form, somewhere it is in the zigzag form, somewhere it is coming as a plain text that is giving. सो उसमें क्या है, बच्चों का फ्लो हो रहा है, ये एकदम स्ट्रक्चर्ड मेथड नहीं है। तो Mhm. इनको अगर आपने देखा हो कॉन्क्रीट पोएट्री की जब हम बात करते हैं तो वो शेप लेता है, जैसे अगर अम्ब्रेला की बात करें तो वो अम्ब्रेला शेप ले लेते हैं। बट Mhm. यहाँ पे जब हवा चल रही है तो हवा, या जिस तरह से सोच चल रही है, या अब जैसे ये मछलियां हैं, आप देखिएगा ये ऐसे गोल घूम रही हैं। सो एक वो विजुअल इफेक्ट दिया गया है जहाँ बच्चे अपने आप को इमेजिनेशन से रिस्ट्रिक्टिव नहीं हो जाते। तो Yes, ये ma'am. बहुत राइटिंग का एक बहुत अहम पार्ट होता है कि हम बच्चों की भाषा यूज करें। अगर आप देखिएगा इसमें जो नाम है वो अगर मगर है, तो विच साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग और रिलेटेबल। और कुछ ऋतु मैम आप कुछ कह रहे थे? ऋतु मैम, आर यू सेइंग समथिंग? चैट में तो नहीं कुछ आ रहा अनामिका? नहीं नहीं। अच्छा। तो प्लीज, हम बहुत कम लोग हैं एक्चुअली। आइडियली आप लोग अगर अपना कैमरा भी ऑन करें तो बहुत बढ़िया होगा, और जितना इंटरैक्टिव और जितना हम एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर पाएंगे उतना ही सीखने को मिलेगा हमें एक दूसरे के साथ। तो वो बहुत जरूरी है। तो अगर आप देखिएगा तो इसमें जो लैंग्वेज थी, अगर मैं अंग्रेजी की देखूं तो बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल है। काफी ढेर सारे वर्ड्स, एडजेक्टिव्स यूज किए गए हैं टू डिस्क्राइब सिचुएशंस और पीपल, मतलब जो मेन कैरेक्टर है। स्पार्कलिंग टीथ है, तो अगर लॉन्ग थिन नीम ब्रांच, अब आप देखिएगा इसमें पूरा विजुअल इफेक्ट आता है। जब हम विजुअल इमेजरी की बात करते हैं तो मडी स्क्विशी, आपको हमेशा समझ में आएगा कि ये मडी स्क्विशी की बात हो रही है। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा तो काफी ढेर सारे हम भाषा का ऐसा प्रयोग करते हैं कि जिससे बच्चों को इंटरेस्ट आए। इवेंचुअली यही सब चीजें हमें अपने बच्चों को सिखानी है व्हेन इट कम्स टू राइटिंग। बट फर्स्ट इज जस्ट टू इंजॉय रीडिंग एज ए लिटरेरी। एक तो है इंजॉयमेंट के लिए, एज ए लिटरेरी बुक। सो दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। वोकेबलरी बढ़ती है, और साथ में आपको इमेजरी से इमेजिनेशन कैसे है वो, इस बारे में हम सारी बातें करने वाले हैं जैसे ही हम आगे जाएंगे। हिंदी में कौन पढ़ेगा? कोई वॉलेंटियर है यहाँ पे? मशहूर मुस्कान कौन पढ़ेगा? तनु मैम, आज आप पढ़िएगा। भूपिंदर सर, वुड यू गिव इट अ शॉट इन हिंदी? Let me try, but by परफेक्ट सर, थैंक यू सो yeah, मच। हाँ जी। okay. मशहूर मुस्कान। पूरे जंगल में सबसे चमकदार दांत थे अगर मगर के। वह हर रोज, कैन यू enlarge it little bit? हाँ जी, हाँ जी सर, व्हाई नॉट। It's एक सेकेंड। yeah, this is okay. ये ठीक है। या हाँ हाँ ठीक है। हम्म। वह हर रोज नीम की पतली लंबी टहनी से उन्हें साफ करता और फिर अपने मटियाले कीचड़ भरे नदी के किनारे लेट जाता, इसी उम्मीद में कि कोई उसकी मुस्कान देखे और कहे, अरे वाह अगर मगर, कितने खूबसूरत चमकदार दांत हैं तुम्हारे। एक सेकेंड, ठीक, मुझे वापस जाना पड़ेगा, इसको रिड्यूस करके फिर आगे चलेगी कहानी। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। बीच बीच में वह अपना सिर जरा सा उठाता, जैसे ही सूरज की किरणें उसके दांतों पर पड़ती, वे कैसे चमकते, जैसे किसी ने हजारों छोटे छोटे सितारे जड़ दिए हों उन पर। उस दिन तो उसके दांत कुछ ज्यादा ही चमक रहे थे,
और वह किसी दोस्त की तलाश में निकल पड़ा जिसे वह अपने शानदार दांत दिखा सके। कुछ पास तैरती मछलियों को देखकर अगरमगन मुस्कुराया, फिर नम्रता से पूछा, मेरे दांत शानदार दिखते हैं ना? उन्हें इतने पर बड़े वक्त। यहाँ यहाँ पे, पर हाँ, मछलियों ने हाँ, उसे। पर मछलियों ने उसे एक नजर देखा और झट से तैर गईं। हम्म। अगर मगर सिर झटकता हुआ आगे बढ़ गया। करेक्ट। और यहाँ लिखा है, कौन इतने कौन बड़े मगरमच्छ के मैंने पहने दांतों तले दांतों आना तले चाहेगा। आना चाहेगी। तो ये मजेदार है। हाँ। तभी। तभी उसे कुछ अद्भुत सुंदर जानवर दिखे। कितनी सुंदर धारियां थी उनकी। शायद वे उसके दांतों की प्रशंसा करें। पर उसे देखता ही सारे जेब्रा अपनी काली सफेद टांगों पर सर पर टापते हुए दूर भाग गए। हम्म। उदास मन अगर मगर आगे बढ़ चला। वाह मेरे दोस्तों, ने खुशी से पुकारा, मेरे चतुर और बहादुर दोस्तों, जरा देखो तो मेरे ये थे बंदर। बंदर। हम्म। और अगर मगर ने मुंह खोलकर अपनी आरी जैसे दांत चमकाए। पर कहाँ गए सब बंदर? अगर मगर ने घनी पत्तियों वाली टहनियों से झांका झांका, लेकिन तुम अगर मगर कह सको, इससे पहले ही सब बंदर गायब हो चुके थे। बेवकूफ बंदर, अगर मगर ने फिर चिढ़कर कहा। अरे, वह काले घने जंगल में चलता गया, चलता गया, चलता गया। अचानक वह किसी पर गिरते गिरते बचा। ओबरा कोबरा, जो सड़क पार कर रहा था। ओबरा, 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 मेरे दोस्त, जरा मेरे दांत तो देखो, अगर मगर चिल्लाया। हाँ, सचमुच खूब खूबसूरत है, ओबरा ने कहा, और जितनी जल्द हो सके वहां से दूर सरक गया। टीगू बाग छायादार पेड़ के नीचे ऊँघ रही थी। वह भी तेजी से पेड़ पर चढ़ गई और उसने अगर मगर को अपने पैने दांत दिखाए। अगर मगर मुस्कुराया। कितने सुंदर पीले दांत हैं तुम्हारे टीकू, उसने ताना मारा और आगे चलता गया। अगर मगर चलता गया, चलता गया, चलता गया। जल्द ही वह जंगल के सिरे पर पहुंच गया। उसने पहाड़ी से नीचे झांका और देखा एक बड़ा शहर। अगर मगर ने सोचा, इस शहर में कितने सारे चतुर लोग रहते होंगे। और फिर वह अपनी सबसे बड़ी, सबसे शानदार मुस्कान मुस्कुराया। तभी फ्लैश, एक तेज रोशनी अगर मगर की तरफ के चेहरे पर चमकी। क्लैक, उसके मुंह से क्या? निकला। क्या? क्या? क्या उसके मुंह से निकला? प्लीज जरा मुस्कुराइए, किसी ने कहा। तुम्हारे पास तो दुनिया के सबसे सुंदर दांत हैं। मैं दिन भर बिल्कुल ऐसी ही मुस्कान ढूंढ रहा था। ओ, अगर मगर ने कहा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। वह मुस्कुराता गया, मुस्कुराता गया, और उसकी मुस्कान फैलती गई जब तक कि उसके गाल दुखने ना लगे। क्लिक क्लिक क्लिक। थैंक यू, थैंक यू, फोटोग्राफर ने खुशी से कहा। अब मुझे अपने टूथपेस्ट विज्ञापन के लिए सबसे सुंदर मुस्कान मिल गई है। मैं टूथपेस्ट के विज्ञापन में अगर मगर के अचरज से पूछा। मैं एक टूथपेस्ट के विज्ञापन में? अगर मगर ने अचरज से पूछा। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बिल्कुल, फोटोग्राफर ने कहा, और यह इस साल का सबसे बढ़िया विज्ञापन भी रहेगा। हाँ, येलो एक मंजन और एक मेडल तुम्हारी लचीली गर्दन में लटकाने लटकाने के लिए। थैंक यू, अगर मगर ने कहा। इतना बड़ा, इतना गोल शीशा तो मैंने तो किसी ने नहीं देखा होगा। अगर मगर ने शान से उसे अपने गले में पहन पहन लिया।
अब वह सिर्फ नीचे झांकता झांकता भर और लोग उसके दांत उसकी ओर वापस मुस्कुराते। पलक झपकते ही पूरे शहर में उसकी चर्चा फैल गई। सारे अखबार अगर मगर की प्रशंसा से भरे थे। अब हर कोई उसे अपनी अपने विज्ञापनों, फिल्मों और बच्चों की रंगीन तस्वीरों वाली किताबों में चाहता था, और कार्टून नेटवर्क पर भी। और अगर मगर वह तो वापस अपने घने हरे जंगल में पहुंच गया है, अपने दोस्तों के पास, जहां वह सबसे खुश रहता है। और वह उनसे हमेशा कहता है, देखा, अगर मगर के दांत पूरी दुनिया में सबसे मजबूत, सबसे चमकदार और सफेद हैं। और उसके सभी दोस्त हामी भरते हैं, एक बड़ी सी मुस्कान मुस्कुराहट कर। एब्सोल्युटली, थैंक यू सर। ये लास्ट। क्या तुमने भी अगर मगर को जरूर देखा होगा? वह इतना मशहूर है कि सभी मंजन बनाने वाले उसे चाहते हैं। और उसके चमकदार, जगमग सुंदर दांत, उसकी मशहूर मुस्कान। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। तो मजा होप आया आप लोगों को? होप आई हैव डन सम जस्टिफिकेशन। नहीं, एब्सोल्युटली सर, फर्स्ट टाइम रीड हमेशा मुश्किल होता है, और वो भी ऑनलाइन, तो किताब भी ठीक से दिखती नहीं है। थैंक यू सो मच सर। हम्म, कोई क्वेश्चंस है यहाँ किसी के पास? तो जब हम राइटिंग की बात करते हैं तो ये एक उदाहरण के तौर पे लीजिएगा कि कैसे एक किताब लिखी गई थी। तो अगर आप देखिए तो उसमें विजुअल अपील की बात हो रही है, लैंग्वेज बहुत रिलेटेबल है बच्चों के साथ, डिस्क्रिप्शंस हैं जो कि जिंदा करती हैं उस चीज को और हमारे इमेजिनेशन। अगर आपने देखा हो तो जिराफ भी पूरी, जीब्रा भी पूरी तरह जीब्रा नहीं था, इट वाज मोर लाइक एन इम्प्रेशन दिया हुआ वहां पे। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरह से डिपिक्शन है जिससे बच्चों की जागरूकता बढ़ी रहे और आगे उनको लिखने का भी शौक पैदा होता है जब वो ऐसी किताबें पढ़ते हैं। तो अगर हम आगे जाएं तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिखना जरूरी क्यों है। ये मैं स्किप कर रही हूँ अभी के लिए, बस यहाँ पे जाते हैं। वाई शुड चिल्ड्रन लर्न टू राइट? बच्चों को सीखना क्यों जरूरी है? प्लीज अगर आप लोग कंट्रीब्यूट करेंगे तो वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को, टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं, बोलते हैं लिखो लिखो लिखो, तो कहेंगे हम क्यों लिखें, जरूरत क्या है ना? तो हमें, हमारे पास कोई रीजन तो होना चाहिए कि आप आंसर्स बुक में लिखो। हाँ, तो आजकल तो जरूरत नहीं है ना लिखने की, क्योंकि कंप्यूटर है, वो हमारे लिए सोच लेगा, है ना? बट हमें अगर आप देखें तो आर्टिकुलेट हम कैसे करना सीखेंगे। मैं एज अ राइटर बहुत लोग बच्चों से मिलती हूँ जो लगता है उनको अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है, तो वो लिख भी, और मेरा ये इंप्रेशन रहता है कि क्योंकि ये इतना ठीक से बोल पा रहे हैं तो ये लिखेंगे भी बेहतरीन। बट मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मेरे 2 या 3 किताबें मेरी वापस आ गई थी। उसमें चैप्टर्स थे जहाँ मैंने बच्चों को कहा था लिखने को, क्योंकि वो एडिटोरियल से वापस आ गया था, क्योंकि मैंने बिना पढ़े भेज दिया कि प्रिज्यूमिंग कि, बट वो सेंटेंस फ्रेमिंग ही नहीं कर पा रहे थे, अपने विचार ही ठीक से व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत जरूरी है कि अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो बहुत प्रॉब्लम है, चाहे वो एक ईमेल राइटिंग हो या आपको आजकल तो व्हाट्सएप पे भी हमें पूरा पूरा लिखना पड़ता है अगर हम डॉक्टर से बात कर रहे हैं या किसी से, कि हमारे को प्रॉब्लम क्या है, और वही भाषा यूज करेंगे ना। तो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए सिर्फ बोलने वाली जरूरी नहीं है, लिखना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हम आगे बढ़े तो एकेडमिक सक्सेस। अब जब मैं एकेडमिक सक्सेस की बात करती हूँ तो एक टाइम ऐसा था, मैंने पहले भी कई वर्कशॉप्स में मेंशन किया है कि मैं एकेडमिक राइटर्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, कुछ पीएचडी के लोग थे, इन सबको मैं राइटिंग सिखा रही थी, लिखना सिखा रही थी, बेसिक ग्रामर स्ट्रक्चर सिखा रही थी कि कैसे सेंटेंस फॉर्म होता है। तो वो कहते हैं कि हमें कॉलेज में तो किसी ने पढ़ाया ही नहीं है, हमें कहा इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, पढ़ लो, और अब उनसे एक सेंटेंस फ्रेम नहीं होता है। तो अगर आपको ऑफिस में प्रेजेंटेशन देनी है या कुछ है तो वो तो खुद ही लिखना पड़ेगा ना,
और वो भी जैसे सर ने शुरू में कहा, अपने विचार। आप चैट जीपीटी या जो आजकल एआई आ गया, अब हमारे जो हमारे सीईओ हैं राजेश सर, उनको दिखाओ तो वो 1 मिनट में आप पहचान जाते हैं कि ये तो तुमने चैट जीपीटी से लिखा है। तो वो पता चल जाता है ना। और जिनकी आईज, आई मीन, जब शार्प आईज हो जाती हैं तो वो पता चल जाता है कि ये अपना कंटेंट नहीं है, ये इस बच्चे के या इस इंसान के विचार नहीं है। तो एकेडमिक सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। अगेन ये बार बार बात हो रही है, एक लाइफ स्किल है क्रिटिकल थिंकिंग। अभी अगर मैं आपको कहूँ, एक एग्जांपल मैंने कहा दिया था, अच्छा आपने चाय बनानी है उसको बोलो, वो तो एक बात हो गई। मगर अगर क्रिटिकल थिंकिंग में रेसिपी लिखनी हो तो वो उसको कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, कौन सा सेंटेंस पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, वो भी तो क्रिटिकल राइटिंग का। मैं कई बार ईमेल लिखती हूँ तो कई बार मैं रफ में लिखती हूँ पहले, फिर उसको 2 बार पढ़ती हूँ और फिर कोई सेंटेंस ऊपर करती हूँ, कोई सेंटेंस नीचे करती हूँ, क्योंकि वो मीनिंग बदल जाता है। तभी बच्चों को पैराग्राफ राइटिंग सिखाते हैं, तभी बच्चों को ईमेल राइटिंग सिखाते हैं। तो वो सिर्फ एक ये नहीं मार्क्स लाने के लिए सिखा रहे हैं, लेटर राइटिंग, फॉर्मल कैसे लिखना है, इनफॉर्मल कैसे लिखना है। तो वो इसलिए सिखाते हैं कि ये इनके काम आएगा जब ये बड़े होंगे, और अलग अलग तरह से काम आएगा। स्टोरी जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली क्रिएटिविटी की बात करते हैं, जो कि जैसे हमने अभी फेमस स्माइल का एग्जाम्पल देखा, तो वहां हमने क्रिएटिविटी की बात किया कि कैसे लैंग्वेज के थ्रू हम क्रिएटिव होते हैं, इमेजरी क्रिएट करते हैं, विजुअल इमेजरी आ रही है, ठीक है, केस भी आता है। तो वो मैं अगले वर्कशॉप पे ज्यादा डिटेल में बात करूंगी इमेजरी, और क्योंकि अगली वर्कशॉप सिर्फ स्टोरी टेलिंग, स्टोरी राइटिंग के बारे में है, तो आज तो जनरल राइटिंग की बात है। और जब हमें अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस करना हो तो कई बार जो भी हमारे विचार आ रहे होते हैं, मैं आपको बताऊं, हमारी मीटिंग्स में कई बार होता है कि जो हमारे सर हैं वो बोलते हैं कि जो तुम कह रही हो वो पहले लिख कर दिखाओ मुझे, फिर मैं बात करूंगा तुमसे। तो अब क्या हुआ, जब मैंने लिखा तो मेरे को सही और गलत भी तो समझ में आएगा ना, कि क्या सही लिखा क्या मैंने गलत लिखा। और फिर जब मैं प्रेजेंट, तो वो मैं एडिट करूंगी ज्यादा सोच विचार से, फिर सबमिट करूंगी। बोलने को तो हम एकदम से कुछ भी बोल देते हैं कई बार, वी डोंट थिंक थ्रू जैसे कहते हैं। तो जैसे ही वो लिखने की बात आती है तो सबके हाथ पैर, ऑनेस्टली हमारे भी हाथ पैर थोड़े ढीले पड़ जाते हैं उस वक्त, कि अब हमें लिखना पड़ेगा। तो बट क्योंकि सर ने बोला है तो लिखना तो पड़ेगा, तो हम लिखते हैं और देते हैं। अनामिका मैम हाँ हाँ कर रही है, तो मतलब शी एग्रीज विद मी, क्योंकि हम दोनों लोग उस सेम उसमें हैं। तो उससे फायदा ही होता है, हमारा ही फायदा होता है, क्योंकि अब हम ल्यूसिडली क्लियरली अपने विचार आगे रख पा रहे हैं। तो इन सब चीजों की वजह से राइटिंग बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं, और ऑफ कोर्स बहुत जरूरी जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो अगर हम सही सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होगा। और आधा टाइम तो कई बार कुछ लोग लिखते हैं, मैं ऑनेस्ट बता रही हूँ, मैं एडिटर थी एक मैगजीन की जहाँ बहुत लोग लिखते थे, ये टीचर मैगजीन्स थी, और काफी बड़े बड़े लोग लिखते थे, बट मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था ये लिखा क्या है। बहुत बड़े बड़े शब्द यूज होते थे, बट समझ ही नहीं आता था। तो बच्चों को बहुत जरूरी है सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाना, कि सेंटेंस बनते कैसे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। सिर्फ बड़े शब्द का प्रयोग नहीं करो, उसको एकदम स्पष्ट तरीके से पेश करना जो है वो ज्यादा जरूरी है। लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें, अगर हम सही मायने में लिख सकें तो ऑब्वियसली बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि अब वो टाइम रह गया जो मैं जब कॉलेज में थी, कितनी शीट्स भरी वाला चल रहा होता था, कि अगर तुमने 50 शीट भर दी तो तुम्हारे मार्क्स मिल जाएंगे। और अब तो मार्क्स की भी बात नहीं हो रही है।
आजकल जो है वहाँ कंपटीशन की बात हो रही है, अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, कॉम्प्रिहेंशन की बात हो रही है, राइटिंग स्किल्स की बात हो रही है। आज मैं उसके बारे में भी बात करूंगी कि कितने प्रकार के राइटिंग फॉर्मेट्स हैं जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को, और उनपे स्टेप बाय स्टेप हमें काम करना पड़ेगा अपने बच्चों के साथ क्लासरूम में। अभी तक कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि अब शुरू हो रही है थोड़ी सी मस्ती। और इसमें जब अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैम्स और सर्स प्लीज आप सबको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, मुझे बहुत मजा आता है करने में इस उम्र में भी। तो उसमें क्या है कि आप एक क्वेश्चन पूछते हो, इसको कहते हैं स्ट्रेच अ सेंटेंस। क्वेश्चन होता है हु, तो अब जैसे ये कहानी थी क्रोकोडाइल की, अ क्रोकोडाइल, ठीक है। डूइंग व्हाट, अ क्रोकोडाइल ब्रशिंग हिज टीथ। व्हेन, a crocodile brushing his teeth every day. Where? A crocodile brushing his teeth every day in the jungle. अब देख रहे हैं ये सेंटेंस बढ़ता जा रहा है। Why? A crocodile brushing his teeth every day in the jungle to show his sparkling teeth. तो अब इस तरह से बच्चों के साथ खेल खेल में उनको पूरा सेंटेंस समझ में आ जाएगा कि कैसे क्रिएट करना है, और क्रिएटिविटी भी आ रही है, अपने विचार भी ठीक से हम कर सकते हैं। अब आप लोगों पे को एक काम करना पड़ेगा, ये तो है एग्जाम्पल। आप प्लीज इनमें से एक कोई भी टॉपिक उठाइएगा, और भी उठा सकते हो अगर आपको एक और इस तरह से हु, डूइंग व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई करके एक सेंटेंस बना के दिखाइएगा। अगर लिखना चाहें तो 2 मिनट है, मैं बोलती जाऊंगी, आप लिखकर बताएं। मेरी दादी क्या कर रही है, जल्दी जल्दी। तौफीक सर बोलेंगे क्या या लिखेंगे? अनामिका अपनी My जो my my grandmother is telling a story now. करेक्ट। यू आर अ ग्रैंडमदर, आई एम अ ग्रैंडमदर, ओके। माई डूइंग व्हाट इज टेलिंग अ स्टोरी। व्हेन, आपने जवाब पहले दे दिया। जी। हाँ, तो अब देखिए ये बहुत मजेदार है, क्योंकि कई बार बच्चों को इरेज करना पड़ेगा, वो वापस जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप है, तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एक तरीके से सोच भी आ रही है। लिख कर देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। जो लोग हिंदी में लिखना चाहते हैं प्लीज हिंदी में लिखेगा, ओके। क्योंकि लैंग्वेज तो चाहे वो कोई भी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो या तेलुगु हो, लैंग्वेज तो लैंग्वेज है, आप एक्सप्रेशंस तो आने ही चाहिए। तो बट ये स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, आप आखिरी में नहीं पहुंच सकते। राइटिंग की वर्कशॉप राइटिंग के बिना तो नहीं हो पाएगा। ओके सोनिया मैम, मैंने लिखा है। आई एम गोइंग टू हम्म। शेयर। शेयर करूँ हम्म। मैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, शेयर करना चाहेंगे? आई मीन हाँ। नॉट राइटिंग, आई एम गोइंग टू रीड इट आउट। हाँ ठीक है। Okay, so my dadi. The next one is okay. Okay, you remove that screen. ठीक है, my नहीं, मुझे dadi. लगा आप शेयर करने वाले हो, मैं अच्छा, दिखा रही screen हूँ। sharing. हाँ। Okay, so who is my dadi doing what? So my हाँ। dadi is making jalebi. Okay, then when? So my dadi is making jalebi from morning. Then where? So my dadi is making jalebi from morning, sitting near the banks of the river. Then why? So my dadi is making jalebi from morning, sitting near the banks of the river because today is my birthday. So परफेक्ट। yeah, अब हिंदी में कोई लिख कर बताएं एक और। तौफीक सर मेरी लिखा? दादी मेरी दादी जलेबी बना रही है सुबह से नदी के किनारे बैठकर, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। अब आप अगर आप देखिएगा, हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाया, बट इसको अगर बेटर करना हो तो सुबह से हम मेरी दादी, तो वो भी आपको ट्वीक करना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है कि आगे 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 बढ़ेगा, ये कहीं पे भी बढ़ सकता राइट। है ना। सेंटेंस बड़ा हो रहा है सांप की तरह,
मगर वो नए नए एलिमेंट्स आते जा रहे हैं। इसमें आप एडजेक्टिव्स भी, विशेषण जिसको कहते हैं, वो भी डाल सकते हैं। कैसी जलेबी? तो गोल गोल चीनी से, चाशनी से भरी जलेबी। हाँ जी सर, भूपिंदर सर, आई थिंक इज रेडी। हाँ जी, ओके, लेट मी ट्राई। हम्म मेरी दीदी, मेरी हम्म दीदी कुछ बना रही है। हम्म मेरी दीदी एक ड्राइंग बना रही है। वो मेरी दीदी पहाड़ की ड्राइंग बना रही है, क्योंकि उसे कल स्कूल में उसे दिखाना है। अच्छा, लास्ट वाला तो हो गया। हाँ, मेरी दीदी क्या कर रही है? ड्राइंग बना रही है। मेरी दीदी ड्राइंग बना रही है। कहाँ बना रही है? स्टडी स्टडी रूम में बैठकर बना रही हाँ, है। तो मेरी दीदी ड्राइंग बना रही है, स्टडी रूम में बैठ के बना रही है। ओके। कब बना रही है? मतलब सुबह बना रही है, रात को बना रही है? शाम के वक्त बना रही है। हाँ। और फिर फाइनल जो आपने बोला। राइट, राइट। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। अब देखिए इसमें भी कितनी क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत पड़ रही है हमें, सोचने की जरूरत पड़ रहा है। यस सुशीला मैम। हाँ मैं बोलना चाहती हूँ। हेलो। हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी, सुन रहे हैं मैम। हाँ, मेरी दादी मॉर्निंग में लस्सी बनाती है और हम सबको एक एक गिलास पीने को देती हैं। और वो दे करके बोलती थी कि आप लोग स्कूल जाओ। अच्छा, बट आपने ये स्ट्रक्चर क्वेश्चन नहीं फॉलो किया। मेरी दादी सुबह में दही क्या से कर रही? लस्सी नहीं बना। नहीं नहीं नहीं, पहले था मेरी दादी, स्ट्रक्चर मेरी की बात दादी हो रही। हाँ, मेरी दादी उसके बाद क्या कर रही हैं? लस्सी बनाती हूँ। हाँ, तो मेरी दादी लस्सी बना रही है, जी चलेगा? जी जी जी। कब बना रही है? मॉर्निंग में, सुबह में। हाँ, तो मेरी दादी सुबह में लस्सी बना रही, फिर तो थी हो जाएगा। जी जी अब जी। देखिए, आप समझ रहे हैं? हाँ हाँ थी। हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, फिर उसके बाद वेयर, मेरी दादी कहाँ? सुबह में लस्सी बना रही हैं और हम सबको एक एक गिलास पीने को दे रही हैं। अच्छा ठीक है। और उसके बाद से बोल रही हैं कि आप लोग पी करके लस्सी को स्कूल नहा धो के स्कूल जाओ। वेरी गुड। ठीक है, बट वो क्यों बना रही है वो तो हमें पता ही नहीं चला। क्योंकि हमारे यहाँ सब लोग रात को गाय जैसे रहती है तो दही बनाते हैं और मॉर्निंग में लस्सी बनाना ही बहुत बनाना बढ़िया, होता है। बहुत बढ़िया। आपको इसका समझ में आया कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे? जी, जो आपने Yes, ma'am. क्रोकोडाइल वाली स्टोरीज लिखा है, टीचिंग हाँ राइटिंग हाँ, स्किल, इसी के अकॉर्डिंग है। बिल्कुल सही सुशीला मैम, बहुत जी जी बढ़िया। जी। अगर और मैम, अनामिका, कुछ वो हाँ, आपको पहले पहले जिस संस्था में हम लोग थे, साड़ एनजीओ में, तो वहां पर काफी अच्छा कराते थे वो लोग भी। स्टोरी टेलिंग पर सेशन वगैरह चलता था वहां पे। इससे पहले मैं वहां पे काम करती थी तो होता था। और आपके साथ और भी अच्छा, मतलब थोड़ा और भी नॉलेज मिल गया यहाँ जुड़ने से। बहुत बढ़िया। ये आपकी पहली वर्कशॉप है या पहले कर चुके हैं आप ज्वाइन? नहीं नहीं, मैंने किया हुआ है मैम, लेकिन आपसे पहली बार मेरी मुलाकात हुई है। अच्छा ठीक है। जी तो मैम। इस तरह से आप लॉजिकली बच्चों को सेंटेंस स्ट्रक्चर्स ही नहीं सिखा सकते। अगर आपने नोटिस किया, मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया है, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। बट जी जी अगर जी। हम इसमें बात करें तो हम टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? Call. प्रेजेंट हाँ, टेंस। काल। काल काल। काल काल तो बोलते हैं, टेंस को काल काल बोलते भी, हैं। तो बिग सर काल भी सिखा सकते हैं, है जी ना? जी 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 जी। मैम। तो प्रेजेंट टेंस, उसमें पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसको हम बताते हैं। हिंदी में और इंग्लिश में भी होता है, संस्कृत में भी होता है, तीनों में सब होता में है। होता है, तेलुगु में भी हेलो। होता है। हेलो। हाँ जी, लकार होता, हाँ जी, संस्कृत में लकार होता है, नमस इंग्लिश में टेंस होता है और हिंदी ओके। में काल होता है। हेलो। हाँ जी सर बोलिए। नमस्कार मैडम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है सजीव सर। मैंने एक नोट लिखा हुआ है जो आपने एक्टिविटी कराई है। हम्म अ, इसमें मैंने लिखा है हु में माय ब्रदर हम्म एंड वर्ड माय ब्रदर रीडिंग अ बुक हाँ व्हेन माय ब्रदर रीडिंग अ बुक एवरी डे अकॉर्डिंग टाइम टेबल हाँ हाँ and where my brother reading a book according timetable in the room
And why my brother reading a book every day according to timetable for obtain good marks. और Fantastic. वेरी गुड, आई थिंक एक्सेलेंट सतीश जी। सो इसी Thank you. तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं लिखने की, और टेंस भी सिखा सकते हैं। कुछ Okay. और क्वेश्चंस हैं यहाँ पे तो पूछेगा। भूपिंदर सर हैं या चले गए? हाँ नहीं मैम, अच्छा मैं है। बोलना चाहती हूँ, जैसे कि बच्चों से इतने ज्यादा लाइन की तो नहीं, लेकिन हाँ 4-5 लाइन की स्टोरीज हम बनवाते हैं, किसी चीज को देख करके आप बनाओ, या कुछ लाइंस लिख देते हैं या कुछ वर्ड्स लिख देते हैं उनसे छोटे छोटे, फिर बच्चे बनाने की कोशिश करते हैं मैम। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सुशीला मैम। आई थिंक ये सब लोग सुन रहे हैं तो सबको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ये कहानी ही बन गई एक तरह से, कहानी तो यही होती है, ठीक है ना। अगर एक दूसरा तरीका है, वो है अनस्क्रैम्बलिंग द सेंटेंसेस। अच्छा अच्छा। ठीक है, अब ये सब उल्टे पुल्टे हैं सेंटेंस। तो ये पहले जो है ये अंग्रेजी में है, तो पहला वाला क्या होगा अगर अंग्रेजी में, क्योंकि मैंने हिंदी में भी किया हुआ है, इसके बाद हिंदी है, तो अगर पहले अंग्रेजी का ट्राई कर लेते हैं। My grandmother grew हाँ up हाँ, in a small In a village small in village Goa. in Goa. परफेक्ट। सतीश, सतीश सर आप नेक्स्ट आप करिएगा, सब टर्न्स लेंगे। Okay, madam. She had a black. She had a black cow called हम्म, Gritla. गठीला Gatila. गठीला। Gatila. मिथिला काल। ये कटीला की कहानी से है, कथा की Okay, जो कहानी Gatila. है। जी 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 जी। अब और तीसरा कौन बोलेगा? Was Gatila happy very everything with? ये सब गलत है ना, तो इसको सही करना है। हाँ ये बोला ना, वाज गटीला हैप्पी वेरी Was very एवरीथिंग happy. विद So Gatila was very happy with everything. Perfect. एवरीथिंग। अब लगला। सुशीला जी बोलिए, अभी आप बोल रही हैं। हाँ सी डिडंट like the just सी डिडंट Like her. लाइक हर स्किन कलर। She just didn't like. हाँ, तो यहाँ होगा शी। देखिए देखिए सब लोग, सी डिड नॉट शी जस्ट डिडंट डिडंट लाइक द कलर ऑफ color हर of स्किन, कलर ऑफ हर स्किन। हर कलर। ठीक है, ये नेक्स्ट। the next day saw some सी सा द नेक्स्ट डे शी सॉ सम बीज। खत्म, नेक्स्ट डे। शुरू से होगा। द नेक्स्ट डे शी सॉ next day. सम बीज। जी जी जी। गटीला Getty, लुक्ड हरसेल्फ, लुक्ड एट हर, अच्छा, करेक्ट, गटीला लुक्ड At herself. हरसेल्फ। वेरी गुड। अब चलो, अब हिंदी का है, ये वही चीज है बट हिंदी में लिखी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये लिख कर भी कर सकते हैं अगर बताना नहीं है। ऋतु जी, काफी लोग। मेरी दादी गोवा के एक छोटे से गांव में पली बड़ी। मेरी दादी उसके पास एक उसके बाद छोटे एक से गांव में पली बड़ी। हाँ मेरी दादी एक छोटे से गांव में पली बड़ी है। हाँ सुशीला मैम, हो गया। अब नेक्स्ट की बात बारी हो रही है। आप पास उनके उसके पास एक गटीला उसके पास के पास एक एक काली गाय थी काली जिसका गाय नाम थी था जिसका गठीला। नाम गठीला। हाँ यस। गठीला हर गठीला हर बात से बहुत खुश। बात से बहुत हाँ, खुश। गटीला हर बात से बहुत खुश थी। उसे अपनी उसका रंग त्वचा पसंद का नहीं था। रंग पसंद नहीं था। पसंद नहीं था। हाँ बिल्कुल। मधुमक्खियों को अगले दिन उसने कुछ मधुमक्खियों के कुछ मधुमक्खियों को देखा। मधुमक्खियों, हाँ, देखा। गठीला गठीला खुद ये गठीला ने खुद को देखा। करेक्ट। गटीला ने खुद को देखा। मजा आया? जी यस मैम। मैम, बहुत ज्यादा।
तो अब यही चीज आप अपने बच्चों के साथ करिएगा। अच्छा, एक तरीका है इस तरह से। तो कई बार जब बच्चे बहुत बोर हो रहे होते हैं मेरे घर में, तो मैं इनको पीसेस में काट देती हूँ, और फिर वो बैठ के जिस पजल की तरह जितने मर्जी सेंटेंसेस बनाओ। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो कि पेपर पे लिख के उन्हीं पे लिखवाओ, आपको भी नहीं लिखने की जरूरत। काफी उनसे अच्छा है पेपर पे मैम, काफी अच्छा है। तो आप बच्चों से ना कॉपी में लिखवाओ या रफ पेपर में लिखवाया, उसको काट दिया, फिर मिक्स करके फिर से सेंटेंस बनाओ। तो आपका ठीक क्या है, राइटिंग स्किल डेवलप हो रही है इससे, और मजे की एक्टिविटी भी हो रही जी, है ना। पजल गेम की तरह मैम, बच्चे हाँ, जोड़ जोड़ के पजल की बताए। तरह है। अब ये बिल्कुल। और भी मजेदार है। अब इसमें क्या, अब ग्रामर पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसको कहते हैं डायमंड फॉर्म। मैंने अंग्रेजी में बनाई है, तो इसका थोड़ा सा मुझे मदद कर दीजिएगा अगर मैं कहीं अटकी हिंदी के उससे। नाउन, नाउन होता है संज्ञा। संज्ञा। जी जी जी, फिर मैं बता दूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी सबसे पहले नाउन, उसके बाद दो एडजेक्टिव लिखने हैं उसी नाउन के बारे में। जी जी जैसे जी। जैसे सूरज, सूरज के साथ दो एडजेक्टिव आ सूरज रहे इज हैं। अ सूरज गुड बॉय। चमकीला है। एक बड़ा एक वर्ड चमकीला, बोलना है मैम, दो बड़ा बोला तो आउट। चमकीला सूरज सूरज। चमकीला है, सूरज लाल है। लाल लाल चमकीला सूरज। लाल नहीं, जी जी। सूरज तो डालना ही नहीं है। सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। अब ये कॉन्सेंट्रेट फोकस। हाँ, सूरज चमकीला और लाल लाल। चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, पीला, ठीक पीला है, या लाल, कंजक्शन इसमें जुड़ जाएगा मैम। ठीक है। नहीं, कंजक्शन हमने जोड़ना ही नहीं है मैम, जो मैं कर रही हूँ उतना ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे इससे ज्यादा। ठीक है, डायमंड नहीं मिलेगा हमारा। फिर है वर्ब, उसको डिस्क्राइब, वर्ब क्या यूज करोगे, चमकता सूरज है ना, तो जी जी चमकता। जी शाइन। जी हाँ, जी। और क्या, और शाइन। शाइनिंग मेरे को हिंदी नहीं आती। कोई चमकदार। तो चमकदार। वही मैम जो आपने बताया, चमकना, शाइनिंग। नहीं, सूरज चमक रहा है तो चमक, चमक हो गया। तो इस तरह से तीन वर्ब्स डालने हैं सूरज के बारे में, फिर चार और नाउन सूरज के बारे में, फिर तीन वर्ब्स, फिर दो एडजेक्टिव्स, और फिर एक नाउन। अब मेरा जो एग्जाम्पल है वो कहानियों पर है। अंग्रेजी का कहानी कैसी होती है, इमेजिनेटिव और फन। ठीक है, तो कहानियों से हम क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, लिसनिंग इंग्लिश करते नहीं हैं, करते। जी और जी टेलिंग करते हैं, है ना। जी जी जी। अब वर्ड्स, कहानियां तरह, कहानियों में क्या क्या होता है, वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स, वर्सेस वर्सेस, होते हैं, कहानियों को टेल। टेल्स भी कह सकते हैं, और जी जी रायम्स भी होती हैं अगर हम पोएम्स की बात करें तो, है ना। जी 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 अब जी जी। उल्टा चल रहे हैं, सेम, फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग, कैप्टिवेटिंग, कनेक्टिंग। कैप्टिवेटिंग, ठीक है, जी जी कनेक्शंस भी फॉर्म हो रहे हैं। उसके बाद मैजिकल, क्रिएटिव, ठीक है। अब ये जब खत्म होगा तो ये निकला पोएम्स। अगर आप देखो तो ये उल्टी भी पढ़ोगे तो स्टोरीज पे पहुंच जाओगे, जी दोनों जी। तरफ से चल रहा है। पोएम्स मैजिकल, क्रिएटिव भी होती है, फैसिनेटिंग, कैप्टिवेटिंग और कनेक्टिंग भी होती है। बीच में वर्ड्स, वर्सेस, टेल्स, राइम्स, फिर रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, टेलिंग, इमेजिनेटिव, फन एंड स्टोरीज। तो ये इसमें क्या है, बच्चों को आपने ग्रामर बढ़ा दी, बट आप देखो वोकेबलरी कितनी बिल्ड हो गई, और मजे मजे में। और ये क्लास एक्टिविटी हो सकती है, ग्रुप्स में करा सकते हो, क्योंकि हो सकता है हर बच्चे की इतना, जो में ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करके ना, तो उसमें क्या कि पहले लिख दिया कि हम किसके बारे में बात करने चाह रहे हैं, दो जगह, जैसे सूरज और चांद। ठीक है, सूरज को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, उसके वर्ड्स आ जाएंगे, आ जाएंगे। और मून को कैसे डिस्क्राइब करोगे, उसके वर्ड्स आ जाएंगे। ऑपोजिट या मिलते जुलते, दोनों में से। डे और नाइट का भी ऐसे हो सकता है। सिमिलर वर्ड भी हो जाएगा, अपोजिट भी हो हाँ, जाएगा। ठीक है ना। कोई प्रश्न है, पसंद आई एक्टिविटी? जी 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 जी। Yes, ma'am. भूपिंदर सर, एनी I, एनी क्वेश्चन? no, it's a very creative way. We can engage the students in such small things. We can give one करेक्ट, sample idea, then we can develop together. That type of thing can be done. राइट राइट, because the idea is to engage children into writing, and then Yeah, maybe they can create a story also later yeah, using yeah. these words. Mhm.
ऐसे ही ये तो बहुत मजेदार था, मैं बचपन से हम कर रहे हैं अभी भी। जैसे बर्थडे कार्ड्स अब तो बनाते नहीं है ये बच्चे, तो अब जैसे नाम से हम बनाते थे। स्टोरीज, एस, अगर आप देखो ये STORIES है। तो पहले अक्षर से आपको बनाना है, जैसे फन, जैसे अनामिका। कल मैं इनसे डिस्कशन कर रही थी, तो अनामिका से ए से क्या आएगा? अनामिका, ए से क्या आएगा तुम्हारा? Amazing. अमेजिंग। एन से नॉटी। Naughty. Yes, absolutely. ए से Or awesome. ऑसम। एम से मैग्निफिसेंट। Magnificent. ई से तो Inte मैं बताती, इंटेलिजेंट। intelligent. करेक्ट। Intelligent. K से के से kawaii. काइंड। काइंड। Kind. काइंड। ए से फिर से Amazing. फिर से अमेजिंग amazing. हो गया। एस्टाउंडिंग। Astounding. तो इस तरह से बच्चों का ये गेम्स का सिलसिला आप इस तरह से पोइट्री के थ्रू उनकी वोकैबुलरी बिल्डिंग, इंटरेस्ट राइटिंग में सब कुछ बिठा सकते हैं। अगर आगे बढ़े तो ये भी एक तरीका है। कल मैंने, तो ये सर्कल टाइम एक्टिविटी हो सकती है। कल मैंने क्या किया, है ना? yesterday I went to the park। तो इसमें आप मतलब बच्चों को पूरा दिन का रूटीन, जब जो मैं जिनकी क्लासेस लेती हूँ उनको अंग्रेजी नहीं आती है, तो मैं ऐसे पूछती हूँ आपने पूरा हफ्ता क्या किया। मेरी स्टार्टिंग ही यहीं से होती है। तो वो जब बताते हैं तो मेरे को उनका एक तो चेन ऑफ थॉट आ जाते हैं, लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन भी आ रही है। फिर उसको लिखने को भी कहती हूँ। अब जैसे मेरी एक स्टूडेंट है ओल्ड, तो वो जा रही, अभी सुबह की ही बात है, उनको बोला कि अच्छा आप अगले महीने जून में छुट्टियों में जा रहे हो, 10 चीजें लिखकर बताओ आप क्या करोगे। बस इतनी सी एक्टिविटी दी थी, क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन ही है जैसे यहाँ, तो वो दूसरे उसके हैं, क्या कहते हैं, नेशनैलिटी के लोग, तो उनको अंग्रेजी नहीं आती। तो उन्होंने मेरे को 10 चीजें लिखकर बताई कि कैसे क्या क्या करेंगे वो। तो ये लिखने की एक्टिविटी हो सकती है। और जितना क्रिएटिव सेंटेंस स्टार्टर्स देंगे उतना, अब जरूरी नहीं है, अब यूजुअली सेंटेंस स्टार्टर्स का मतलब होता है पूरी कहानी लिख दो, नहीं। आप एक सेंटेंस से शुरू करो, फिर उनको कहो कि चलो अब 5 सेंटेंस बनाओ, कनेक्शन वाले। आप प्लीज उनको पुश नहीं करें कि मतलब पूरी कहानी 10 पेज की लिख दें या 100 वर्ड्स की भी लिख दें। तो वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस रखना पड़ेगा, है ना? तो वो बहुत जरूरी है। ऐसे ही ये हिंदी के हैं, वही है, उनको मैंने हिंदी में करा हुआ है। अगर आगे चलें तो एक ये भी तरीका है जहां पे जैसे द डांसर मूव्स टू द म्यूजिक। अब इसमें पहले ही एडजेक्टिव दिए हुए हैं, द ग्रेसफुल डांसर मूव्स टू द मेलोडिक म्यूजिक। अब वो बच्चों को ठीक जगह पे ऐड करने हैं एडजेक्टिव्स। और यहाँ एक वर्ब भी आ गया, लुक्स एट। द यंग बॉय लुक्स एट द फ्लावर्स, कलरफुल फ्लावर्स। Colorful. तो इस तरह से बच्चों को ना एकदम सहज भाग से स्लोली स्लोली सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ले जाएं। हम क्या करते हैं कि बच्चों को कहेंगे कि सब कुछ ही लिख दो। अगर रोज की ये छोटी छोटी एक्टिविटीज, क्योंकि इनको बिल्कुल ही आदत नहीं है लिखने की, आजकल के बच्चों को कहीं पे भी नहीं है, तो ये छोटी छोटी अगर क्लासरूम में एक्टिविटीज रोज हों, ठीक है, तो क्योंकि तो वो लिखने का एक चाव बैठता जाएगा, और रोज एक नए तरीके से आप कर सकते हैं। तो द लिटिल गर्ल, अब ये समझ नहीं आएगा लिटिल डालें या सॉफ्ट डालें, ये इसमें भी गलती कर जाते हैं बच्चे, है ना? प्राइड का एक और वर्ड होता है सॉफ्ट। तो इस तरह से आप लोग डिटेल्स इन अ सेंटेंस, इस तरह की एक्टिविटीज अपने बच्चों को दे सकते हैं। अनामिका इज गोइंग फाइन, सो फार सो गुड।
I think some of them have mentioned that they have time constraint. They need to head वो ahead for the next तो session. ठीक है, तो फिर ये थोड़ा सा लिख देते हैं कि ये, या हम नेक्स्ट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइटिंग करें। हाँ, नेक्स्ट ये वर्कशॉप में क्या अगले वर्कशॉप में हम ये करेंगे, जहां हम बात करेंगे कि किस तरह की विभिन्न विभिन्न तरह से हम राइटिंग करते हैं, और ये I सिखाएंगे हम जल्दी। और ये टीचर्स कैसे क्लास में इसको फॉरवर्ड ले जा सकती है, हम यहीं से शुरू करेंगे अगली बार। yeah, ठीक है। sure. अभी अभी कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ हैं, या कैसा अभी तक का अनुभव है, वो तो Well, I'll जरूर give a प्लीज poll बताइए। also. आप क्वेश्चंस पूछते हाँ। रहिए, मैं पोल भी साइड बाय साइड देती रहूंगी. अभी तक का कैसा रहा एक्सपीरियंस भूपिंदर सर? Yes, ma'am. This is a good strategies are there, very small, but that will help to develop the writing skill. मेरे को यही लग रहा है कि हाँ, इनको छोटी छोटी चीजें करने से रोज करेंगे कुछ ना कुछ, तो इट विल बी हेल्पफुल। हाँ, मतलब ऐसे ही चलेगा, नहीं तो अगर आप कहें कि 100 वर्ड्स लिख दो या 200, वो भी एक भार लगेगा बच्चों को ना। तो ये इंटरेस्टिंग चीजों से तुम बड़ी चीज भी क्योंकि क्या है, अगर आप देखो, मेरा पॉइंट होता है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है जब हम छोटा काम सही करते हैं, तो अपने आप हम थोड़ा सा और तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाती है। अनामिका, ये तो दूसरा वाला है कि Yeah, लर्न I'll give that. आईडी। ये भी meanwhile if they can give the poll कितने लोग के पास लॉगिन आईडी है, और यदि है आईडी पासवर्ड भूल गए हो, या आईडी ही ना हो, तीनों में से कोई एक ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए जो आपके स्क्रीन पे पोल आ रहे हैं। एक बार ये पोल दे दीजिए, because that time I was not able to give this poll, so I thought I'll give it now. I request everyone, आपकी स्क्रीन पे पोल आ रहा है, तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, झटपट फटाफट आपको जो भी इसमें ऑप्शन है आपके पास, learn.katha.org का पोर्टल आईडी, लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, तो यस आई हैव आईडी करके फर्स्ट ऑप्शन क्लिक कर दीजिए। यदि आईडी है, पासवर्ड भूल गए हैं, तो दूसरा ऑप्शन, और आईडी ना हो तो आप थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए। आपकी स्क्रीन पे पोल्स आ रहे हैं, पोल यस दिखाई दे, या आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्टार्ट पोलिंग प्लीज। स्क्रीन पे नहीं आ रहा तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, देन आई विल गिव द अदर पोल। इन केस नहीं आया तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए कि पोल आपके पास है या नहीं। ओके, अब मैं सेशन फीडबैक ले रही हूँ। आज का जो सेशन था आपको कितना यूजफुल लगा, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। 1 जो है सबसे कम रेटिंग है और 10 जो है सबसे हाईएस्ट रेटिंग है, तो आप उस हिसाब से आप रेटिंग दे सकते हैं। आज का सेशन का फीडबैक का ये जो आ रहा है, शिवम जी आपने चैट बॉक्स में पूछा है क्या, किस चीज का, वो तो बेसिकली learn.katha.org जो हमारे कथा का पोर्टल है, जहाँ पे ऑनलाइन स्टोरीज, ई बुक्स हैं, एक्टिविटीज हैं, क्विज हैं, आपको कुछ ढूंढना या एलेक्सा की स्टोरीज आप प्ले करना चाहते हैं, सब कुछ वहां पे, ऑडियो भी है, वीडियोस भी हैं, पीडीएफ स्टोरीज भी हैं, क्विज भी हैं। तो वो पोर्टल, आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड है या नहीं, वो था इसके पहले का पोल। फिर ये जी पोल है आपके स्क्रीन पे आ रहा है, दूसरा पोल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आपको सेशन कैसा हाँ, लगा? आ रहा है, आ रहा है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज गिव अ फीडबैक, 10 being the highest and 1 being the lowest। आपको आपका ऑनेस्ट फीडबैक, क्योंकि हमको तरक्की करने में, इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इट्स नॉट कमिंग ऑन योर स्क्रीन, ओके। हम मेरे स्क्रीन पे आ रहा है, आपके किसी की भी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है? नहीं मैडम, आ रहा है, सबमिट कर दिया मैंने। आ रहे हो? आया तो कुछ था। मैम कुछ मैंने लोग, भी कर दिया, आया था। आप दो दो जगह से लॉग्ड इन हो क्या अनामिका? यस यस। अच्छा, नहीं आ रहा है काफी लोगों के अच्छा, वैसे कैसे था फीड, वैसे आपको इन पसंद आया आज का? जनरल, हाँ। हाँ, इन जनरल बात तो करिएगा। यस सर, ओवर टू यू भूपिंदर सर प्लीज। नहीं मैम, आई लाइक द सेशन इन दैट सेंस, बिकॉज डिफरेंट स्ट्रेटजीज आर देयर जो हमें हेल्पफुल होंगी जब हम बच्चों के साथ डायरेक्टली काम करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली सेंटेंस स्ट्रक्चर आगे बच्चे को, तो बच्चा कुछ भी लिख पाएगा। तो काफी अच्छी है जो रीअरेंजिंग द सेंटेंस। हम सिंगल सिंगल करवाते हैं, लेकिन अगर स्टोरी को करें तो वो और एक लिंक दे देगा बच्चे को। दैट इज अनदर थॉट प्रोसेस, क्योंकि ये अगर साथ में स्टोरी भी डेवलप हो रही है।
और वो जो डायमंड वाला बताया आपने, तो नाउन एडजेक्टिव्स ये तो करते हैं बच्चे, लेकिन उनको कैसे एक पर्टिकुलर थॉट के साथ जोड़ना और देन इट कन्वर्ट इनटू अ स्पेसिफिक story poem, so that depends that how it is reflected, so that is really good poem section. वंडरफुल। थैंक यू सर। सर आप कितने टीचर्स को ट्रेनिंग और कर रहे हैं, दे रहे हैं? मैम मेरे डिस्ट्रिक्ट में 150 टीचर्स हैं। ओह वाओ, ऑसम, वेरी गुड टू नो दैट। सुशीला मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ मैम, सेशन बहुत अच्छा था, काफी कुछ सीखा मैंने इससे। और जो आपने बताया है नाउन के साथ एडजेक्टिव, तो एनसीईआरटी में भी दे रखा है, बट हम यहाँ भी बच्चों को करवाते हैं, कुछ कुछ वर्ड्स देते हैं, पूछते हैं कि बताओ, जैसे बकरी काली है, या तो एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों को सिखाते रहते, कोशिश करते हैं सिखाने की। और जो आपकी बुक्स है मैम, बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत मतलब बच्चे उससे जो हम कहानी सुनाते हैं बच्चों को, तो काफी बच्चे इसे सीखते भी हैं। और इन फ्यूचर आप हमें ऐसे बुक्स और भी देने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे बच्चों को हम आगे सिखा सके कुछ ठीक अच्छा। है। सतीश सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? सतीश सर, आई थिंक दैट्स ऑल, अभी कोई भी नहीं है। तो आगे कल अगली बार जो है वो राइटिंग वर्कशॉप है, दैट विल बी द लास्ट पार्ट। ये कंटिन्यूएशन में रखूंगी मैं थोड़ा सा, और कहानियां कैसे बच्चों पे डेवलप कर सकते हैं राइटिंग स्किल्स, उसके बारे में भी बात करेंगे थोड़ी सी ज्यादा विस्तार में। तो थोड़ा पार्टिसिपेट करिएगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी ये वर्कशॉप। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक थैंक यू मैम, यू। थैंक यू। थैंक यू मैम सो मच, सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिवम जी। आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड, आपने इतने बार लिखा टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर, कुछ इमरजेंसी थी क्या आपकी? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, कुछ वर यू इन अ हरी और समथिंग, कुछ और क्लास थी आपकी? यस मैम, ट्यूशन क्लासेस। ट्यूशन क्लासेस हैं आपकी, ओके ओके। कौन से से हैं आप, कौन से स्कूल से हैं? मैम डीपीएस वाराणसी। अच्छा, ओके फाइन। तो आपको आज यूजफुल लगा ये आज का जो सेशन था, यू फाउंड इट हेल्पफुल? यस मैम, वेरी वंडरफुल। ओके, फैंटास्टिक, गुड टू थैंक नो यू। दैट। थैंक यू, थैंक्स। ऑल द बेस्ट। थैंक्स मैम। Yeah, thank you everyone. Thank you so much. Next Wednesday हम लोग continue करेंगे writing workshop. So thank you all for your time. We will connect same next Wednesday, same time 2:30 to 3:30. But meanwhile यदि आप में से किसी को भी पोर्टल में जो बुक्स हैं उसको किस तरह यूज किया जाए, लॉगिन किस तरह किया जाए, पासवर्ड यदि भूल गए तो किस तरह पासवर्ड वापस वो किया जाए, मोबाइल नंबर द्वारा किस तरह लॉगिन किया जाए, ऑनलाइन जब हम पोर्टल पे वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं learn.katha.org पोर्टल पे, तो किस तरह वो कहानियों को प्ले किया जाए, या वहां से स्टोरी बुक्स पीडीएफ बुक्स चाहिए डाउनलोड करना है तो कैसे कर सकते हैं, या फिर एलेक्सा की कहानी भी वहां से कैसे बजा सकते हैं, एलेक्सा को इंस्टॉल करना है, वो सब जो वेबसाइट पे है। या आपको कोई कहानी ढूंढनी, जैसे आज की कहानी थी फेमस स्माइल स्माइल, अब इसको ढूंढना है, किस तरह ढूंढा जाए, वो भी हम आपको फ्राइडे के सेशन में बताएंगे। फ्राइडे 12:30 to 1:30 फ्री सेशन है। यू ऑल कैन रजिस्टर फॉर दैट ऑल्सो एंड ज्वाइन। So I will be more than happy to guide you at any point in time. So thank you all for your wonderful time, and we will meet maybe this Friday. जल्दी आप join करते हैं, and those who join on Wednesday will be connecting on Wednesday. Thank you for your time. Bye bye all of you. थैंक यू बाय। मैम। Thank थैंक you. यू। Thank you, sir.